ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر بھی ہیں باولپور سے صفا رفاقت. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صفا؟ جی ٹھیک ہے. صفا یہ بات. جی ہیلو. جی. ہیلو. جی الحمدللہ ہم ٹھیک. آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا. ذرا نعت سنائیے گا میرا سونا. ہیلو. عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان. صفا. علاج گردش نینو نہار ہے رمضان. طہارت دل آبشار ہے رمضان. جی قیام رحمت پروردگار ہے رمضان. سبحان اللہ. شان جی رمضان شان رمضان شان رمضان کی رونق بکھرنے لگی. شان رمضان کی رونق بکھرنے لگی. بگڑی قسمت ہر ایک کی سنورنے لگی. جو رحمت میں ابرے کرم آ گیا. وہ مہینہ جو ہے محترم آ گیا. اشک آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا. خطا کاری کو کیا سے کیا کر گیا. بندہ کرنے لگا رب سے گفتگو. اللہ 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 شاہ رمضان آیا چار سو. اللہ 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 شان رمضان آیا چار سو. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. ایسے تجھ سے کروں سامنا گر رہی ہوں ذرا تھامنا. خالی دام کے لیے آ گئی. تیرے بن میری ہستی ہے کیا. لاج رکھنا میری ہے خدا. واسطہ ماہ رمضان کا بس جھکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا. بس جھکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا. بندہ پرور ہے تو اے ذرا دیکھنا. بندہ پرور ہے تو اے ذرا دیکھنا. تیری مرضی کو پانا میری جستجو. اللہ 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 شان رمضان آیا چار سو. اللہ 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 شان رمضان آیا چار سو. سبحان کیسے اللہ. ہونٹوں پہ جاری ہوتی ہے دعا. سانس لینا بھی گویا ہے تیرے خدا. اس مہینے میں نعمت ہنسی مل گئی. سونی دھرتی سی روشن زمین مل گئی. آمل بانٹ کے آمل بانٹ کے بانٹ لو ہر خوشی. بانٹ لو ہر خوشی. ہاں یہی ہے عبادت یہ بندگی. شان رمضان ہے دل کا سکون برو. اللہ 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 شان رمضان آیا چار سو. اللہ 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 شان رمضان آیا چار سو. سبحان اللہ. بہت اچھے آپ نے سنائے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کیا ہے گڑیا؟ ہیلو ہیلو. میری عمر 12 سال ہے. اچھا 12 سال ہے آپ کی عمر. میری عمر 12 سال ہے. اچھا باولپور سے کال کی. اب کراچی کیسے آؤ گی؟ چلے بہت شکریہ آپ نے کال کی. چلے جی ماشاءاللہ سنائی تو بہت اچھی ہے. اچھا جو پہلی بچی سنائی تھی اس کی بہت زیادہ آواز خراب ہو رہی تھی. اس کی تھوڑی بیٹر ہمیں آواز آ گئی تو ہم نے سن بھی لیا. کیونکہ ویسے ہی آپ آؤٹ آف سٹی میں تو اس کا تو پھر زیادہ ہی ہم نے کہا چلیں جی کسی طرح بھی ہم ان کی کال پہ جو نا ججمنٹ نہیں ہوتی. نہیں بہت مشکل ہوتا ہے ججمنٹ کرنا. کیا کہتے ہیں ساجد بھائی؟ پھٹری ہوتی ہے آواز نا. وہ ہم اس کو جج کرنا کی وجہ سے جو دل رکھنے کے لیے تو سننا پڑتا ہے. اب کیا کریں اچھی بات ہے. بچوں کے دل نہیں توڑ سکتے نا ہم لوگ. اچھا جی ہمارے پاس ایک بچہ نعت خواں کھڑا ہے. ذرا سنیے ساجد بھائی. بیٹا سنائے. نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ سلیم. عبداللہ سلیم. جی بیٹا.
کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو ہاتھ میں کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروائے شپے اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروائے شپے اڑتا ہے پھریرا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے نعت کا انداز. ہمارے درمیان ایک کالر. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چکوال سے جی چکوال سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے؟ نمرا فضل. نمرا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو نمرا؟ جی میں ٹھیک ہوں. پروگرام دیکھ رہے ہو؟ جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اچھا میرا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ جی، کی میں- عمر کیا ہے نمرا؟ میری عمر 15 سال ہے. اچھا تو پھر آپ نعتیہ مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہو؟ جی جی چلو بسم اللہ کرو, سناؤ مجھے نمرا. ٹھیک ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بل مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بل مدینے میں. ہیلو میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں, میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باشاک سینہ چاہ, میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باشاک سینہ چاہ.
गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। बहुत शुक्रिया निम्रा, बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। आपने हमें नात सुनाई और हम किसी की भी ख्वाहिश नहीं टालते और ना किसी का दिल तोड़ते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज करें, उनके हौसले बढ़ाएं। और आपने सुनाया, बहुत शुक्रिया। ये और बात है कि क्योंकि लाइव कॉल्स में कुछ आवाज़ आपकी जंप कर रही है तो फिर उसमें लाइन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा जी, मैं आप अपनी फाउंडेशन के बारे में बता रहे थे, तो ये बताइए कि जो हम लोग रमज़ान का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, लोग छोटी छोटी नेकियां कर रहे हैं, तो कैसे कैसे कर सकते हैं? अगर जो बहुत पैसा नहीं रखते तो नेकियां कैसे कर सकते हैं? देखें, सभी ऐसे है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हैसियत के मुताबिक बताया है जी जी, कि जो जितना अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लें तो एक वो भी सहाबी था कि जब वो अपना माल लेके आया तो वो चंद खजूरें थी, तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर वो आपने खजूरें जो थी वो सारे सामान के ऊपर जो है वो फेंक दी बरकत के लिए। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला नियतों को देखता है। ये नहीं कि अगर मैं हजारों का मालिक हूँ और आप करोड़ों के मालिक हैं जी। और मैं उसमें से 1 रुपया खर्च करता हूँ और आप 1 लाख खर्च करती हैं, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेकियों को देखते हुए आपके दिल की जो असल इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है ना जी, जिस तरह की कोई इस्तिताअत रखता है, जिसके पास जो हो सकता है वो कोई माली तौर पे करे, कोई वैसे सरंजाम दें। अभी अगर कोई नेकी का काम हो रहा है, आप उसके साथ जाके आप अगर पैसे की मदद नहीं कर सकते, आप उनके साथ अपनी माली मदद नहीं कर सकते, तो आप जानी मदद कर दें। जैसे हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई नेकी कर रहे होते हैं, वो लोग जो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि अभी हम साथ कुछ करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे मदनी साहब उसके साथ हमारे साथ जो है वो साथ मिलके किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को इफ्तारी करवा रहे हैं, कोई साथ पैकिंग कर रहा है, कोई सामने रख रहा है। इसी तरह से ऐसे अगर कोई राशन दे रहा है, आप किसी के घर तक भिजवा दें, आपको पता है आप वो बता दें। इस तरह से मिलजुल के किसी भी तरह से नेकी, कोई इफ्तारी की मद में क्यों ना हो, ज़कात की मद में क्यों ना हो, सदकात की मद में क्यों ना हो, इबादत की मद में एक दूसरे की मदद करना क्यों ना हो, या किसी को अगर आप ये समझते हैं कोई रास्ते में जा रहा है और आप उसका कोई पत्थर वहां पड़ा हुआ है या कोई बाइक खड़ी हुई है वहां पे, रोजादारों को इफ्तार में ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह से आप इस नियत से हिस्सा लेंगे कि इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा। कहीं पे भी कोई ऐसा है आपको कहीं लेट हो रहे हैं किसी इशारे के ऊपर ट्रैफिक के अंदर, उस पे सब्र कर जाना भी नेकी के सिले में ही आएगा। तो यानी कि जब हम इस चीज़ को कोशिश करेंगे रमज़ान के अंदर कि सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो सदकात और खैरात जो है वो इस रमज़ान में निकालते हैं, वो बिल्कुल कोशिश करें हर तरह से इन दिनों में ही दे दें, ताकि टाइम से अगर आपको मिल जाएगा तो इस रमज़ान के महीने में जो आपके सदकात और खैरात दिए हुए होंगे, जो आपकी ज़कात दी हुई होगी, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अजर ज़्यादा का फरमाया है। ज़्यादा अजर होने की वजह से आप कोशिश करें और आप अपने करीब तरीन के लोगों को ज़रूर देखें, अपने माल को आप जांच पड़ताल करें कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है। आप अगर ज़कात के मुस्तहिक नहीं भी हैं तो फिर भी इस महीने में आप अपने सदकात ज़रूर करें, खैरात आप किसी ना किसी तरीके से ज़रूर करें। आप देखें, मैंने अपनी मैं ज़ाती बात करता हूँ सभी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं थी तब भी मैंने शौकिया तौर पे मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे जो है कुर्बानी करनी है और मुझे इस्तिताअत अता फरमा कि मैं इस तरह की कुर्बानी कर सकूं। मेरे पास जो भी उस वक़्त जमा था मैंने अपनी कुर्बानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नवाजते नवाजते आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं सभी गया मलिर के अंदर और मुझे वहाँ पे एक बकरा पसंद आया। उसकी कीमत मुझे अभी सही तरीके से याद नहीं, लेकिन मैं इतना जानता था कि 15-16 साल की बात है
32 या 33 हजार रुपये उसकी कीमत थी। ठीक है। और वो मुझे इतना पसंद आ गया कि मैं चाह रहा था कि मैं ये खरीद के इसी बकरे को मैंने कुर्बानी दी। जैसे ही वहां पे जाते हैं, वो बकरा उन्होंने घर पे ही पाला हुआ था, वो उसको फीडर से दूध पिला रहे थे और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किस्म का बकरा था। मैंने दिल में ख्वाहिश की अल्लाह पाक ये मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे सही। उस वक्त। यानी कि वो आज तक मुझे वो बात याद आती है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते मैं उसको खरीद के, लेकिन मैंने उस वक्त के हिसाब से जो मेरे पास था मैंने खरीदा और अल्लाह की राह में उसको कुर्बान किया। ठीक है। तो जितना हो सकता है आपके पास, अगर हम जाते हैं आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब उनके घर पे कुछ भी आता था तो वो खिरात कर दिया करती थी। हालांकि खुद के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं होती थी, खुद के पास कुछ नहीं होता था। तो हमें सीखना किनसे? अपने सलफ से हमने सीखना है कि वो हमारे लिए क्या करके गए हैं। तो जितना हो सकता है वो भी कि जो खुद मुस्तहिक है, मैं बोलता हूँ, वो भी दे दे आगे अल्लाह की राह के अंदर, इस नीयत के साथ कि अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, हम पिछले जिस वक्त कोरोना चल रहा था तब हमारी नेकी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ही हम राशन भिजवा रहे थे लोगों के घरों के ऊपर। ईद आती है, बकरा ईद आती है, तो सभी हम ना गोश्त लेके जाते हैं। हमारा एक लड़का जाता है, हमारे उधर एक इलाका है शांति नगर के नाम से, वहाँ पे काफ़ी मुस्तहिकीन लोग हैं। तो जब जाता है एक औरत, अल्लाह पाक उनको बरकतें दे, कि जब हम गोश्त के 2 लड़का लेके जा रहा होता है और हम कुर्बानी के मौके के ऊपर गोश्त भी बांट रहे होते हैं, 2 हाथ के अंदर छापरे होते हैं। तो उससे हमारा बच्चा जो था वो उसे जानता था, उसने बोला आंटी आपके घर पे कुछ, उसने बोला अभी तक नहीं आया, अल्लाह भेज देगा। तो उसके हाथ में जो थैलियां थी उसने 2 थैलियां पकड़ा दी। तो 2 थैलियां उसने पकड़ते हुए मदनी साहब जवाब क्या दिया कि बस एक मुझे दे दो, एक कहीं और पे दे दो, जैसे किसी और के मेरे पास सुबह से अभी नहीं आया तो मैं 2 नहीं लूंगी, आप किसी और को आगे दे दो। कुछ कह रहे साजिद भाई, कुछ कह रहे हैं। मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि अल्लाह की राह में आपको जो है वो आप उसको दें, उसकी राह में कुर्बान करें, तो बेशक आपको उसके बदले में भी देता है। तो एक ऐसा ही वाकया था आले मोहम्मद के घर का जी, कि जब उनके यहाँ फाके थे तो उन्होंने 3 दिन के फाके रखे थे, रोजा था, जैसे हम लोग रखते हैं वैसे उनके फाके थे। तो उनका रोटी होती थी रोजाना। जब उनका पहला दिन था, उन्होंने रखा था, जब रोटी अपना खाना खाने का वक्त आया तो रोटी थी। तो एक शख्स आए, फकीर था, ऐसे ही था, खुदा रोजाना 3 दिन थे और तीनों दिन खुदा ने फरिश्तों को भेजा था, किसी को फकीर की, किसी को मिस्कीन की, किसी को कैदी, ऐसी सूरत इख्तियार करके खुदा ने भेजा था। और तीनों दिन उन्होंने अपनी रोटी दे दी थी और भूखे सोए। लेकिन चौथे दिन खुदा ने उसका बदला उन्हें यूं दिया कि उनके घर में जन्नत का खाना नाजिल हुआ और बहुत सारे दिनों तक उस खाने की खुशबू वहाँ रही। उससे ये पता चलता है कि जो आप खुदा की राह में कुर्बान करते हैं कभी जाया नहीं जाता और खुदा आपको उसका अच्छा सिला भी देता है। जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए जी, फाइनल हो गया है मुफ्ती साहब। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए ट्रॉफीज हैं ग्लैम गैस की जानिब से और बटर बिस्किट और टेस्टलैंड की जानिब से बिस्किट्स गिफ्ट हैं सब बच्चों के लिए और विनर्स को भी मिलेंगे और आप लोगों को भी। तो मैं कहूँगी हम लोग फिर खड़े हो जाएं, ठीक है ना जी राज? हम लोग अभी इसको क्योंकि फिर इसके बाद का तो मैं बहुत देर से अरे अल्लाह सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बोल दूं कि आप माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर कोई फर्स्ट नहीं आया या सेकंड थर्ड नहीं आया तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आपके लिए आगे मौके बहुत हैं आगे बढ़ने के, और मेहनत करें, और मेहनत करें। जो भी जी। आपने कलाम याद करना है अच्छे तरीके से उसको याद करें, मुकम्मल अदायगी के साथ, मुकम्मल तलफ़ुज़ के साथ। जब आप पढ़ें तो बिल्कुल घबराए नहीं करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा करें। तो आगे इंशाल्लाह मौके मिलेंगे। जो मतलब जिनको प्राइज़ ना मिले अभी तो वो अपना दिल नहीं छोटा कीजिएगा। चलिए फिर भी बटर बिस्किट्स के गिफ्ट तो मिलेंगे। आप आए? अच्छा जी, आप अनाउंस करते जाइएगा। साजिद भाई यही अपनी जगह खड़े थे आज भी, और जिस जिस बच्चे की पोजीशन हो जाए मैं आपकी तरफ एक बार आप दे दीजिएगा ट्रॉफी। एक बार साजिद भाई जी, थर्ड पोजीशन का कौन बच्चा है? बस माइक निकालो पहले, तो मुझे अपनी चीजें देनी होंगी। थर्ड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है वो है कोड नंबर 05 मोहम्मद गाजी। चलिए जी, मोहम्मद गाजी आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने ली है। अब वो सर के पास जाओ। हाथ से दीजिए सर। जी
ये बिस्किट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर भी और ग्लैम गैस की जानिब से ट्रॉफी। माशाल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे पास थर्ड का सेकंड का क्या नाम है? सेकंड पोजीशन पे हैं कोड नंबर 1 हिफ्जा शकील। आ जाए जी, क्या नाम है? हिफ्जा शकील। हिफ्जा शकील। आ जाए बेटा। हिफ्जा शकील। अच्छा, इसको बेटा लेकर आओ, आवाज लेकर आओ, बहन को, छोटी बहन को लेकर आओ। हिफ्जा को नजर नहीं आता, लेकिन इस बच्ची के लिए भरपूर किया माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। उधर उधर सर के पास, साजिद भाई के पास, इस साइड से आ जाओ। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर से निकलो, मेरी बेटी को इधर से मेरे पास आ जाओ। आ जाओ, जी आ जाओ। आ जाओ मेरा बेटा, इधर आ जाओ। बस ये टॉफी दो, उधर से ये वाली टॉफी। ये है हिफ्जा शकील। हिफ्जा पता है शकील। आप सेकंड आए हो मेरा बच्चा, ये देखो जी। माशाल्लाह। साजिद भाई आप ये ले बेटा। जी, ये ग्लैम गैस की जानिब से इनको ट्रॉफी और ये बटर बिस्किट भी दो, और टेस्ट लैंड की जानिब से गिफ्ट भी। ये ले। सुभान अल्लाह। ओके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी इसको हमारे इधर ही बिठा दीजिए। बेटा आप यहाँ जी, पे आप बैठ जाओ, इधर मेरा ही बेटा। बैठ। ये सोफे पे बैठ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आपको देती हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट पोजीशन। और जी। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है कोड नंबर 11 अब्दुल्ला सलीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, ट्रॉफी भी माशाल्लाह। पास। ये है, मुफ्ती साहब पेपर रख दें आप, सर, और आप बीच ये में दें। दोनों के दरमियान में और आते। इधर से। ये जी, पेपर छोड़ दो, पेपर छोड़ दो। अब दोनों सर, के आप बीच में इधर आ खड़े हो, जाओ, यहाँ पे इस ऐसे। जगह। बिस्किट्स भी दो। ग्लैम गैस की जानिब से फर्स्ट पोजीशन को ट्रॉफी और ये बिस्किट्स टेस्ट लैंड की जानिब से। माशाल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। और बेटा मेहनत अच्छा, करो, हमने और थोड़ी माशाल्लाह। जज करने के लिए हमने किया था। हाँ जी, प्लीज तशरीफ रखिएगा। बहुत अच्छी हुआ है माशाल्लाह इस बच्चे की। अच्छा, ये हमारी बच्ची की, हमारे साथ ही हमने इसको बिठा दिया है, और ये इस बच्ची की ट्रॉफी भी है। अच्छा, ये बच्चों को अप्रिशिएट करना, और ये हम लोग तो एक बस अल्लाह पाक की तरफ से कुछ था, तो हमने का रमज़ान में रखा कि बच्चे भी अपनी अपनी, जैसे भी आपने कहा कि दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि देखिए आगे मौके बहुत हैं। आप अभी छोटे हैं, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, आगे मौके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। बस आपने मेहनत करना है, और मुकम्मल तौर पर जो है ना वो मेहनत को आपने छोड़ना नहीं है। जहाँ जहाँ आपको मौका मिले वहाँ पे आपने ज़रूर जाना है, वहाँ पे आपने पढ़ना है, 100% देने की कोशिश करें। नतीजा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ही आपको ये नतीजा देना है और आपको ये मकाम अता फरमाना है। लेकिन आपने मेहनत से पीछे नहीं हटना। मेहनत में 4 लफ्ज़ हैं, मीम, हा, नून और ता। ये 4 लफ्ज़ जो है ना ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब बंदा कहे कि मैं मीम को हटाकर सिर्फ हा और नून ता को देखता रहूं, तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो पूरी मेहनत आपने करनी है, और दिल और जान से मेहनत करनी है। जो कलाम पढ़ें उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, उसके तलफ़ुज़ को देखना है। किसी को सुना दें कि कोई अपना उस्ताद बना रहे हैं, उसको आप सुना दें। जब तक आप उस्ताद नहीं बनाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसलिए कि ये नहीं कि किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं इतनी वो नहीं हूँ, लेकिन मैं सुन रही थी जब, तो कुछ बच्चों की ये थी कि वो सांस उनका रुक जाता था, कुछ लोगों की थोड़ा अदायगी, तलफ़ुज़ जैसे कहते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा सा कि हम कहते हैं जैसे कलम, काफ और इस तरह के अल्फाज में भी वो एक बड़ा काउंट करता है। और मुझसे बेहतर फिर आवाज़, ये भी बहुत ज़रूरी है। हर कोई नहीं, हम तो कहते हैं बस अल्लाह के नाम लेने वाले और मोहम्मद के नाम लेने वाले, लेकिन जब मुकाबले की बात होती है तो फिर हम उसमें थोड़ा जजमेंट करना पड़ता है, ऐसा है कि नहीं साजिद भाई? बिल्कुल। एक तो ये मेहनत की बात जो मदनी साहब ने की है, बहुत अच्छी बात की है। और आप ये देखें कि हमारा जो अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ जो रिश्ता है ना, वो ज़बान का रिश्ता है, और इस रिश्ते की बिना के ऊपर हम अपनी जाने तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो हम ये बच्चे हमारे जो समझ लें कि अल्लाह के नबी वसल्लम हमारे रहबर हैं, हमारे मोहसन हैं, और हमारे दिल के अंदर जो आप आका अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है, वो क़यामत क्या कि जब तक हमारे क़यामत में भी जो हमारी असल ज़िंदगी होगी तभी ये नाम हमारे साथ, तब उसी वक्त तो ये असल उस वक्त की तो हमारी तैयारी हो रही है कि हमें जब पढ़ना है तो दिल के अंदर ये रख के पढ़ना है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अपने दिल की मोहब्बत से वो लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, यानी कि वो दिल से निकले, आपके दिल से निकले।
और आप इसी तरह अपनी इबादतों के अंदर भी मशगूल रहें, आप अपनी नेकियों के साथ रहें। ये बच्चे हैं माशाल्लाह जवान हो रहे हैं, कि गुनाह का मतलब ये होता है कि वो काम जो अल्लाह के ताला ने आपके ऊपर जो है वो हराम करार दे दिया जैसे है। मगफिरत का अशरा जा रहा है, तो हाँ हम जी। अपने लिए कैसे नेकियां समेट लें और गुनाहों से कैसे दूर हो जाएं? देखिए, नेकियों कैसे समेट सकते हैं? नेकियों का यानी कि हर वो लम्हा, जैसे अभी हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम बैठे हुए हैं और हमारे दिल से, हमारी जबान से अस्तगफिरुल्लाह का विरद हो, हाय हाय, अल्लाह को ठीक है? बहुत पसंद है। ये हम भूल बैठे हैं कुछ, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये हमारे लिए इतना शानदार महीना क्या कि ये उम्मत मुसलमान ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी शान इसको दे दी है कि इसकी तो 24 घंटे की ज़िंदगी ही अल्लाह पाक ने इबादत कर दी है। वो उस सूरत में अगर वो नबी पाक सल्लम के तरीके के मुताबिक हो, आपका चलना, ओढ़ना, बैठना, यहाँ तक कि अगर हम वॉशरूम में भी जाते हैं और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुब्सी वल खुबाइस पढ़ के अगर हम दाखिल होते सही हैं, कहा। देखें वो तो हमारी हाजत है, लेकिन इसलिए हमारी इबादत में अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है कि हमने जो तरीका इख्तियार किया वो अल्लाह तबारक व तआला का अपने पैगम्बर को बताया हुआ तरीका था अपने बंदों के लिए। तो 24 घंटे की वो जिंदगी इबादत बनती है कि जहाँ से आप गुजरते जाएं और आपकी रैयत में कोई ऐसी चीज आए कि जिससे किसी को तकलीफ पहुंची हो, आप उसको दूर कर सकें, वो नेकी जाते हुए करते चले जाएं। कोई मिलता है उसको सलाम करते हुए चले जाएं। हर तरह से अगर आप ये समझते हैं कि किसी चीज से रास्ते के अंदर कोई रुकावट है, कोई मर्द है, कोई मेरा भाई सुन रहा है, कोई मेरे बच्चे ये सुन रहे हैं, इस चीज को देखते हुए कि इससे हमें अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा है, नियत में दिल में वो रख के वो काम कर जाएं। ये नहीं कि ये तो मेरा काम नहीं है, मैं तो इसको नहीं करूंगा। इसी तरह हमारे जो बच्चे ये बैठे हुए हैं, अपने बड़ों का जब उनको कोई बात, बड़े आपके घर में कोई करते हैं, उन आप क्योंकि आपका बच्चे क्या होते हैं कि उनको सही तरह से शऊर नहीं होता, तो जब आपके माँ बाप किसी तरह से भी आपको डांटते हैं, उसका दिल में गुस्सा नहीं करो, बल्कि आप ये सोचो कि वो आपको किस लिए डांट रहे हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए आपको डांट रहे हैं। तो उस वक्त आपने गुस्सा नहीं करना है और ये देखना है कि मम्मा और पापा किस चीज से मना कर रहे हैं। बड़ों के साथ लेकिन ये भी तो है ना, बड़े जब आपस में लड़ रहे होते हैं, आज क्योंकि बच्चे मौजूद हैं तो बिल्कुल। गुफ्तगू हो रही है तरबियत की, लेकिन मैंने देखा है कुछ माँ बाप बच्चों के सामने ही शाउट कर रहे होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को लानत मनामत और तानेबाजी कर रहे होते हैं, सभी- और बच्चे इतना डर जाते हैं उनको देख वालिदैन को ये समझना चाहिए। मैं उन गुरानों की अभी बात कर रहा हूँ। हम जब मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमारे पास फैसले आते हैं और हम मुख्तलिफ ऐसे जगह पे फैसले कर रहे होते हैं अपने इलाकों में, जो हमारे साथ केस आते हैं मियाँ बीवी के आपस के झगड़े के, इस तरह से मैं तो हैरान इस चीज़ से होता हूँ कि देखें, आपकी ये औलाद आपके नक्शे कदम पे कल चलेगी, आप जो इनको देंगे कल ये सीखेंगी। और इन बच्चों के दिल के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जब आपस में आपके घर पे लड़ाई चल रही होगी और ये मासूम बच्चे देख रहे होंगे। तो लिहाजा इन बच्चों से भी मैं बोलता हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप को ये बात दोहरा दें, जब उसके सामने वो लड़ रहे होते हैं, एक मरतबा बच्चे खुद से बोलें, अगर वो शऊर रखते हैं कि मम्मा आप क्यों लड़ रही हैं, आप क्यों पापा लड़ रहे हैं, ताकि उनके दिल में हो सकता है ये बात उतर जाए मदनी साहब, कि उनको ये एहसास हो जाए कि मासूम जो बच्चे हैं वो किस तरह से जो हैं वो हमें खुद से बोल रहे हैं, जबकि हम समझदार हैं। अपनी नस्लों की तरबियत ऐसे करें जैसे नबी वसल्लम ने बताया, अल्लाह के नबी वसल्लम के तरीके के मुताबिक। तो अभी दूसरी बात ये है कि इस रमज़ान के महीने के अंदर हमें करना क्या है। साजिद भी मसला यहाँ पे ये आता है, तरबियत जो है वो हमारे वालिदैन ये सोचती हैं कि जब बच्चा 12 साल का हो जाएगा ना फिर उसकी तरबियत शुरू होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि जब बच्चा 4 माह का पेट में मौजूद होता है तो उसी वक्त से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। माँ की गोद पहली दरसगाह, माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह होती है और बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन से सीखते हैं। मैं आपकी मदद साहब बात को आगे बढ़ाऊं कि आप इस वक्त जो दुनिया के अंदर यहूदी कौम को देख रहे हैं कि वो दुनिया के अंदर कैसे तरक्की की राह के ऊपर गामजन है, वो जिस वक्त आपने जो अल्फाज बोले हैं कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, माँ वो काम कर रही होती है
जो मतलब कि उसने आने वाले वक्तों के अंदर वो अपने बच्चे को उस तरह का बनाना चाह रही होती है। अगर आप मुख्तलिफ अल्लाह के वलियों की बात करें और देखें कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जब उनकी माँ तलावत किया करती थी, जब बच्चा माँ के पेट में होता था, कि जिस वक्त वो पैदा होता था वो बच्चा उसी तरह से वो कलाम पाक उसको हिफ्ज होता था जो उसकी माँ उसको पढ़ा रही होती थी। तो जब माँ की गोद अल्लाह तबारक व तआला ने पहली दरसगाह के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 साल का बच्चा तो वैसे सर वो बालिग होगा, लेकिन पेट के अंदर कितनी शानदार बात है मदनी साहब की कि 4 माह का जब पेट के अंदर मौजूद है बच्चा, तब से जो माँ के काम काज के तरीके होंगे उसके ऊपर उस बच्चे की तरबियत वहाँ पे उसका असर होगा। तो लिहाजा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आपको उसी वक्त से ही, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसी वक्त से आप वो काम करें उसके सामने जिस तरह का आप अपने बच्चे को आइडियल बनाना चाहते हैं। ऐसा ना हो आप अपने बच्चे को नेक बनाना चाह रहे हैं, आप उसको एक इंजीनियर बनाना साथ साथ चाह रहे हैं, अपना खिदमतगार बनाना चाह रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन आप उसकी तरबियत का ख्याल नहीं रखते। और मैं ऐसे वालिदैन को बोलता हूँ जो अपनी बच्चों की ज़िंदगी के अंदर दौलत, पैसे और रिज़्क़ की जुस्तजू के अंदर मगन है। खुदारा इस पैसे की से ज्यादा आपको जरूरत है अपने बच्चों की तरबियत की। तो मैंने एक बड़ा फिक्रा मैंने सुना कि अगर आप धूप के अंदर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उसकी बजाय छांव में आके बैठ जाएं, ठीक है ना। आपको पता चलता है कि धूप में पैसे हैं लेकिन आपको सुकून छांव में है तो छांव में बैठे। इन बच्चों की तरबियत के ऊपर आप बहुत ज्यादा ख्याल करें। अपने बच्चों को आप जो है कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है खुद से भी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक उनको लाने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर बिल्कुल बात इस बात पे खत्म हो गई कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, अगर सीरत तय्यबा को हम जो है फॉलो करें तो फिर बाकी बात ही खत्म हो जाती है। नाज़रीन आप लोग देखें स्पेशल पैकेज अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का, और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको दस्तरखान पे मिलेंगे और आप हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइएगा। लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।